Welcome students. This is the first chapter of Unit 2 for ACM 101 Financial Accounting. I'm going to explain what is hire purchase system today along with a few important features. And then we will also talk about what are the important terms used in the process of hire purchase system. We will also try to understand what are the different methods to calculate interest under hire purchase system for the payment of different installments. And then we will also understand what are the journal entries passed in the books of hirer when the hire purchaser, when a transaction takes place, a business takes place for the hire purchase system. So first let us understand what is the meaning of hire purchase system. Hire purchase system is a system where the purchaser acquires the goods or articles and takes immediate possession of the same and agrees to pay the total hire purchase price in different installments. The ownership of the asset remains with the vendor or the seller initially, and once the last installment is paid back by the hire purchaser or the purchaser to the seller, at that moment the ownership comes back to द हायर परचेजर. तो इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो हायर परचेज सिस्टम एक तरीके का कार लोन, एक तरीके का व्हीकल लोन है या एक तरीके का होम लोन है, जिसके अंदर जो सेलर है या जो वेंडर है वो आपको किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का पोजीशन दे देता है, लेकिन उसकी ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है. इसके बदले में आप पोजेशन और यूज के बदले में हायर परचेज सिस्टम के अंडर परचेजर जो है वो प्रॉमिस करता है एक एग्रीमेंट के तहत कि वो एक तय वक्त के अंदर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में उस वस्तु का या उस चीज का प्राइस उसको रिटर्न कर देगा, और जिस दिन वो लास्ट पेमेंट उसको उस प्रोसेस में कर देगा तब हायर परचेज सिस्टम खत्म हो जाएगा और उस चीज की ओनरशिप, उस कार की या उस बिल्डिंग की या उस घर की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होकर के सेलर के पास से परचेजर के पास आ जाएगी. तो ये एक छोटा सा मीनिंग है हायर परचेज सिस्टम का. कार लोन्स और होम लोन्स जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसमें जब तक कंप्लीट पेमेंट नहीं हो जाती ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर, और जब वो पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड बैक to the seller, the ownership is immediately transferred to the person who has bought the property, the object, or the car or the vehicle, etc. The hire purchase transactions are governed by the act called Hire Purchase Act 1972, और इसके बारे में और डिटेल्स आप अलग से पढ़ सकते हैं. The act came in force from September 1st, 1973. इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं जैसे कि हायर. The word hire means any periodical amount payable by the hire purchaser to the owner of the property under hire purchase system. तो hire word जो है उस amount के लिए यूज किया जाता है जो हायर परचेजर पे करेगा या अग्री करता है पे करने के लिए सेलर को या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को अंडर हायर परचेज सिस्टम, जब तक कि उसकी ओनरशिप सेलर के पास है. हायरर, हायरर यानी हायर परचेजर. Hire purchaser is the person who has agreed to pay an amount in exchange of goods or services, goods primarily. He has acquired the possession immediately after purchasing the product. However, the ownership remains with the hire vendor. So hirer is the hire purchaser. Hire vendor is the person who is delivering or who has delivered the product or the goods to the hire purchaser or the hirer. He is the owner of the property. However, the possession has been transferred from hire vendor to hirer. So hirer is basically the owner of the product till the time the last installment is received. Cash price. Cash price is the price which is the actual price of the product if it is not purchased on hire purchase agreement. If in case the purchaser would have agreed to pay the full amount of the product in cash, that amount is called cash price. Hire purchase price. Hire purchase price is the total amount payable by the hirer or hire purchaser under the hire purchase system, hire purchase agreement to the hire vendor to acquire the possession of the product, and this is basically the sum total of all the installments that he is paying to the hire vendor. सारी अगर installments को आप total कर लेंगे तो उसको आप हायर परचेज प्राइस बोलेंगे. तो इसका मतलब बेसिकली जो कैश प्राइस है उसके अलावा जो इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो रहा है वो. Hire purchase charges. It is the difference between the hire purchase price and the cash price. तो अगर आप डिडक्ट करें हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को तो जो डिफरेंस निकलेगा उसको आप
हायर परचेज चार्जेस, और टिपिकल लैंग्वेज में उसको इंटरेस्ट बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैश प्राइस. डाउन पेमेंट, दिस इज द अमाउंट दैट इज पेड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और गुड्स फ्रॉम वेंडर टू हायरर, और इसको आप डाउन पेमेंट बोलते हैं. ये कुछ परसेंटेज ऑफ द टोटल कैश प्राइस का कुछ परसेंटेज होता है जो एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी दिया जाता है, बिगिनिंग में जो खरीदा जाता है. जैसे आप कार लोन या होम लोन के साथ इस एग्जांपल को इक्वेट कर सकते हैं. Then now let us quickly understand what is the calculation of interest. तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में डिफरेंस होता है. ये हमने अभी समझने की कोशिश की कि जब आप किसी प्रोडक्ट को फुल अमाउंट कैश पे करके खरीदते हैं तो वो हमेशा आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और जब आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी गुड को या किसी भी कॉस्टली प्रोडक्ट को हायर परचेज सिस्टम के अंडर में खरीदते हैं, जैसे कार या होम लोन, तो जो उसका टोटल आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, अगर आप उसको जोड़ेंगे तो वो कैश प्राइस से ज्यादा होता है, और उसको आप हायर परचेज प्राइस बोलते हैं. हायर परचेज प्राइस में से इफ यू विल डिडक्ट द कैश प्राइस, यू विल गेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. Now the most important thing is that how you calculate interest in different circumstances. How you calculate the rate of interest in different circumstances. Now the important thing is कि इंटरेस्ट का अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 या 4 अलग अलग सिचुएशंस में. द फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एंड द टोटल कैश प्राइस इज गिवन. जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और टोटल कैश प्राइस दिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, फर्स्ट स्टेज में जब डाउन पेमेंट हो रहा है तो आप टोटल कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट के अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे. जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बचा है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगा करके कैलकुलेट करेंगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा है. उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को और अगली इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को जोड़ करके, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मैंने डाउन पेमेंट के बाद वाली स्टेप आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट प्लस जो अभी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इन दोनों को जोड़ के आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में से उसको घटा दीजिए. अब जो अमाउंट बचा हुआ आएगा, जो अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के वक्त आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का बैलेंस है, उस पर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो इसको बेसिकली आप एक तरीके से दूसरी लैंग्वेज में रिटन डाउन वैल्यू भी कह सकते हैं. तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट के वक्त जो रिटन डाउन वैल्यू आई, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करके. जो अमाउंट आएगा उसको और जो कैश प्राइस का आउट जो इंस्टॉलमेंट अगला आप पे कर रहे हैं, उन दोनों अमाउंट्स को आप जोड़ दीजिए. दैट विल बिकम द सेकंड इंस्टॉलमेंट. सेकंड इंस्टॉलमेंट को घटाने के बाद भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, एंड एट द एंड जो बैलेंस बचेगा टोटल कैश प्राइस का, वो इंटरेस्ट कहलाएगा. तो इस तरह से आप व्हेन ओनली द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल कैश प्राइस इज गिवन, आप इंटरेस्ट का अमाउंट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. Now the second situation is that calculation of interest when the rate of interest is available, total cash price is also available and installments are given. तो ये भी आप इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था, आप कैलकुलेट करेंगे. जो थर्ड सिचुएशन आएगी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट द टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन. अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग तरीके से समझिए. जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, एक एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कैश प्राइस के पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको बैकवर्ड ऑर्डर यूज करना होगा. बैकवर्ड ऑर्डर का मतलब, अगर मान लीजिए 5 इंस्टॉलमेंट्स है, तो पहले आपको 5वीं इंस्टॉलमेंट पर जाकर के उसकी कैलकुलेशन करनी होगी, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट. तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप जो कैश प्राइस पेड है उसके ऊपर और इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर के ऊपर करेंगे. तो फॉर्मूला कैसे आप कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए आप. इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये यूनिटरी जो सिस्टम होता है मैथमेटिक्स का, उसी के अंडर ये क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बॉडमास यूज करके आप इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच स्टेप. और उसको ईच स्टेप को कैलकुलेट करने से पहले क्या आपको करना होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस हमको पहले पता करना होगा. तो जो आप इंटरेस्ट का अमाउंट पहले केस में आइडेंटिफाई करेंगे,
पहले केस में उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में जोड़ेंगे। उसके बाद आप 4th ईयर की इंटरेस्ट के अमाउंट पर आएंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट को, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके इंस्टॉलमेंट के साथ जोड़ेंगे, और इस तरीके से पांचों जो आपकी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स है उसके अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को जोड़ लेंगे। When you will do this activity, then you will club all the installments together along with the interest amount to reach at the higher purchase price. And you know that the difference between cash price and higher purchase price is the amount of interest. So if you exclude from the higher purchase price only the amount of interest that you have calculated at 5 different installments, then you will get the cash price of the product as well. Okay. So some of the examples are given in the course material that you can go through to understand how interest is calculated in all these positions. Now, what is the accounting treatment in the books of hire purchaser? This is also equally very important to understand. What are the journal entries that we will make when the hire purchaser or the hirer buys a product, purchases a product from a hire vendor? तो दो aspects hain, total cash price method and asset accrual method. Now these two methods are only used ki books ke andar, books of accounts ke andar hire purchaser kaun sa price mention karega, what will be the price that he will mention in his books. So this is a journal entry same rahegi, there will not be any difference in the journal entries. It is just that the cash price method and asset accrual method will have two different amounts. Agar aap cash price method follow karoge to amount kuch different dalega, asset accrual method डालोगे तो amount कुछ different मिलेगा, right? So total cash price method, as the course material says, जब आप contract sign कर रहे हैं, so the asset will be debited and hire vendor's account will be credited with the cash price of the product. At the end of the first year and following years, the interest account is debited each time when installment becomes due and vendor's account is credited. So basically you will use the cash price at the beginning of the कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही परचेज हुआ प्रोडक्ट, आप हायर वेंडर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से, कैश प्राइस से, और हर साल एट द एंड व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज ड्यू यू विल डू द इंटरेस्ट एंट्री इनटू द बुक्स बाय डेबिटिंग द अकाउंट एंड अगेन crediting the hire vendor's account. Contrary to this, asset accrual method has a different kind of amount mentioned in the books of accounts. Amount mentioned, I am again stressing on the point that only the amount changes in the books of accounts, the entry would not change. Accounting treatment does not change, the accounting amount will change. In this method, hire purchaser at the time of signing the contract or at the time of purchasing the product or the asset, he will debit the asset account and credit hire vendor's account with the down payment price in the first year. And then at the end of each year, when the asset, when the installment is due, he will make interest account debit and proportionate amount of cash price. Now, for example, I will give you a very typical simple example rather than giving any other example. For example, you purchased an asset of rupees 2 lakhs and you have agreed to pay 5 installments of rupees 40,000 and you have a 5% interest rate. So when there is an asset accrual method, at the beginning you said that okay, you will pay 50,000 rupees as down payment. So at the beginning of the journal entry, at the time when the product is purchased, you will make an entry in the books of accounts with 50,000 rupees, that's a down payment. You will debit the asset account and you will credit the hire vendor's account. When the first installment of 40,000 rupees is due, you will make an entry with 40,000 rupees interest and hire vendor's account will be credited. So that's the difference of amounts. In the first transaction, you will only talk about total cash price being debited just once at the beginning and then only interest being due. The second method says every time you will make the interest due, you will also mention the proportionate cash price or proportionate installment value, which is 40,000 in my example, in asset accrual method. However, the entries will be more or less similar. The accounting treatment is going to be similar because of the golden rules of accounting, right? So what are the different entries? अब हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हायर परचेजर जैसे ही वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो क्या क्या डिफरेंसेस
डिफरेंट एंट्रीज करेगा। तो कुछ एंट्रीज हैं जो एक मेथड में होंगी और एक में नहीं होंगी, और ज्यादातर एंट्रीज दोनों के केसेस में सेम होंगी, तो वो मैं आपको साथ में समझाता जाऊंगा। सो ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग एसेट्स, टोटल कैश प्राइस के मेथड में यू विल डेबिट द एसेट अकाउंट एंड यू विल क्रेडिट हायर वेंडर्स अकाउंट। तो मान लीजिए हायर वेंडर जो है कोई एबीसी कंपनी है, एसेट मान लीजिए आपने कार खरीद ली या व्हीकल खरीद लिया या ट्रक खरीद लिया, सो यू विल से दैट कार अकाउंट डेबिट टू एबीसी एंड कंपनी, एंड यू विल यूज कैश प्राइस, द टोटल कैश प्राइस इस एंट्री में आप यूज करेंगे। एसेट अक्रूवल मेथड में ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग द एसेट यू विल नॉट डू एनीथिंग, अभी आप कुछ नहीं करेंगे, जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उस दिन एंट्री करेंगे, राइट? So the first entry in the asset accrual method will be done on the date of payment. ठीक है, तो जैसे ही आपने पेमेंट किया तो आप क्या एंट्री करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और ये पहली एंट्री करेंगे आप विद डाउन पेमेंट। वहां पर आपने जो पहली एंट्री करी थी वो आपने करी थी टोटल कैश प्राइस से, आपने क्रेडिट कर दिया था हायर वेंडर को, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल कैश प्राइस मेथड है। अब सेकेंड एंट्री देखिए जो आप टोटल कैश प्राइस के मेथड में करेंगे, विच इज हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब यहां पे आपने पहली बार जो पेमेंट, जो डाउन पेमेंट कर दी, उसकी एंट्री आपने करी हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, वॉट एवर इट इज। पेमेंट आपने कर दी और हायर वेंडर के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। शुरू में आपने जो उनको टोटल अमाउंट से क्रेडिट किया था उसमें से कुछ अमाउंट आपने पे कर दिया, सो यू हैव डेबिटेड हिम, यू हैव मेड अ कॉन्ट्ररी एंट्री टू इट। ऑन द अदर साइड ऑफ इट, जब आपने पेमेंट डाउन पेमेंट किया इन द एसेट अक्रूवल मेथड, तो पहले तो आपने एसेट के आने की एंट्री करी, हायर वेंडर को क्रेडिट किया। दूसरे केस में आपने वो बिल्कुल सेम एंट्री करी, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, डिस्चार्ज ऑफ डाउन पेमेंट। सो यू हैव पेड द डाउन पेमेंट एंड यू हैव मेड द एंट्री। तो ये दो एंट्रीज आपने कर दी ताकि बैलेंसिंग हो जाए कि आपने एसेट खरीद ली और उतने अमाउंट से आपने डाउन पेमेंट कर दी, बोथ द एंट्रीज आर डन। सो बेसिकली यू हैव सीन दैट entries are same, it's just the difference of amounts, right? Now the third entry is when the first installment is due, you will make the interest entry in the books of hire purchaser cash price method में। So interest account is debit to hire vendor account, आपने due कर दिया unpaid interest due for hire vendor, तो उसको क्रेडिट कर दिया, is a creditor for you, you have to pay the interest amount। और जब आपने इंस्टॉलमेंट पे करी तो आपने लिख दिया हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इट्स द सेम एंट्री जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करी कैश प्राइस मेथड के अंडर, वो आपने जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे किया उसके अंदर आपने हायर वेंडर को डेबिट कर दिया और कैश और बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। On the other side, which is the asset accrual method, on the payment of the higher vendor, when the installment is due, right? So what will you do? Higher purchaser अपनी बुक्स में एसेट अकाउंट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा और हायर वेंडर को क्रेडिट करेगा। अब ये क्या है? जो इंस्टॉलमेंट का प्राइस है उससे एसेट अकाउंट को डेबिट करेगा, 40,000 का हमने एग्जांपल लिया था तो 40,000 करेगा। जो इंटरेस्ट है मान लीजिए उस पे 5,000 रुपीज इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब उसने इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया। इफ यू लुक एट द अदर साइड, इट्स द सिमिलर एंट्री ओनली, देयर इज नो डिफरेंस। बस फर्क ये है कि शुरू से ही उसमें कैश प्राइस को शुरू में ही डेबिट कर दिया गया, इसलिए उसको अब बार बार हायर वेंडर को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है विद द टोटल अमाउंट। अब वो सीधे हायर वेंडर को डेबिट करता जाएगा जब भी वो ट्रांजैक्शन करेगा, पेमेंट करेगा। और जो सेकंड केस है जिसमें एसेट अक्रूवल मेथड है, हर बार जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, क्योंकि उसने शुरू से ही एंट्री में जब पेमेंट किया उसी हिसाब से उसने अमाउंट ड्यू किया है, तो यहां पर वो पहले वेंडर अकाउंट डेबिट करेगा, वो पहले एसेट अकाउंट डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगा टू हायर वेंडर करेगा कि इतने अमाउंट से उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू है। फिर उस टोटल अमाउंट ड्यू को हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दिखा करके उसका ट्रांजैक्शन डिस्चार्ज कर देगा। तो ये वो हर बार करता रहेगा। ये 3 एंट्रीज जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाती तब तक ये इस तरीके की 2 एंट्रीज, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड पेमेंट, ये वो करता रहेगा। इसके अलावा जो एक
स्पेशल एंट्री है विच इज डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर साल जब भी आप इस तरीके की फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो हर साल उन फिक्स्ड एसेट्स पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। तो जो हायर परचेजर है उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन लगेगा बिकॉज ही इज बेसिकली यूजिंग द कार। तो जैसे आप लोगों को भी पता है कि जानकारी होगी कि जैसे हमने कोई कार खरीदी या कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी, हर साल उसकी सर्टेन अमाउंट कम हो जाती है और उसी हिसाब से उसका इंश्योरेंस का भी अमाउंट, कार का इंश्योरेंस अमाउंट भी कम हो जाता है, बाइक का इंश्योरेंस अमाउंट भी कम हो जाता है, बिकॉज उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी कम हो जाती है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन दोनों साइड में बिल्कुल सेम एंट्री होगी, अमाउंट भी बिल्कुल सेम होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब देखिए शुरू में आपने एसेट को क्रेडिट किया था, एसेट को डेबिट किया था बिकॉज एसेट हैज बेसिकली द डेबिट बैलेंस, इट्स अ काइंड ऑफ real account which is coming into the business, so it will always carry a debit balance. जब आप इसको क्रेडिट करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप कम करते हैं, तो डेप्रिसिएशन करते ही आपने उसकी वैल्यू को कम कर दिया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, व्हाटएवर रियल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 5%, 20% is, that will be written over here. It's same on both the methods, so there is no difference, the amount is also same. अब जो है जब आप ईयर एंड में आ गए या क्लोजिंग के वक्त आ गए तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स को जो डेबिट साइड में रखे हैं उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट? सो द डेबिट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्वियसली आपके लिए डेप्रिसिएशन भी लॉस है, इंटरेस्ट भी एक तरीके से लॉस है, इट्स नॉट एन इनकम और गेन फॉर यू। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इन क्रेडिट। सो ये दोनों एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन दोनों दिखेंगे। आपको पता है ये दोनों ही ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में दिखा दिया, व्हिच विल ऑब्वियसली डिक्रीज योर प्रॉफिट, increases expenditures and losses, right? Both are type of nominal accounts. तो दोनों डेबिट साइड में आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने ट्रांसफर कर दिया और इसमें जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो टोटल आ जाएगा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो आप क्रेडिट कर रहे हैं जर्नल एंट्री के अंदर उनके सामने उनके इंडिविजुअल अमाउंट्स आप मेंशन कर देंगे और उसकी नरेशन पास कर देंगे जर्नल एंट्री। तो ये जो है कुछ एंट्रीज हैं जो नेक्स्ट आप फॉलो करते रहेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लेंगे, सारे इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, तो जो टोटल कैश प्राइस मेथड है उसमें तो ऑटोमेटिकली लास्ट एंट्री पास होते ही जो हायर वेंडर है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, टोटल बैलेंस हायर वेंडर का आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से जीरो हो जाएगा। शुरू में मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का हायर वेंडर को क्रेडिट किया था, जब लास्ट एंट्री आप पास करेंगे तो हायर वेंडर के नाम से सारा का सारा अमाउंट डेबिट में आ जाएगा, सारे अपने उसके इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए। ऐसे ही जब आप एसेट अक्रूवल मेथड पढ़ रहे हैं तो एसेट अक्रूवल मेथड में जितना जितना अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है पहले आप ड्यू की एंट्री करते हैं और उसके तुरंत बाद आप पेमेंट की एंट्री करते हैं, तो उसी वक्त वो बैलेंसिंग होती रहती है। तो लास्ट ईयर में भी सेम एंट्री होगी और उसके बाद आप उसको क्लोज कर देंगे। और जब भी आप डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की बात करते हैं हर ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये आप साल के एंड में करेंगे। तो ये बहुत सिंपल आपने देख लिया कि आप ये जर्नल एंट्रीज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज जनरल एंट्रीज आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे हायरर या हायर परचेजर की बुक्स में। तो ये जितनी जनरल एंट्रीज है इसी में से एक एक यूनिक अकाउंट का आप उठाएंगे और उसका लेजर बनाएंगे। दोज अकाउंट्स विल बी एसेट अकाउंट, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 4 अकाउंट्स आप बनाएंगे। इसके अंदर जो भी जर्नल एंट्रीज हुई हैं इन अकाउंट से रिलेटेड उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड में आप ट्रांजैक्शंस पोस्ट करेंगे और उनकी बैलेंसिंग करेंगे। तो ये जो है लेजर अकाउंट्स जो है वो हायर परचेजर की बुक्स में बनेंगे। तो ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। नाउ हायर वेंडर की बुक्स में हम क्या एंट्री करने वाले हैं ये भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो सेलर है, जो वेंडर है, उसकी बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी। नाउ वी हैव टू थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट वी हैव सोल्ड समथिंग, वी हैव गिवन समथिंग टू हायर परचेजर or hirer, and we are supposed to make entries in our books of accounts. So we'll start with the journal in the very first year.
पहला जो है, अगेन आप सोच करके देखिए कि जब आपने किसी को सामान दे दिया तो सिचुएशन ये हुई कि हायर परचेजर और हायरर्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू हायर सेल्स अकाउंट। ये एक वर्ड यूज करेंगे आप, हायर सेल्स अकाउंट। हायरर्स अकाउंट और हायर परचेजर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड to higher sales account. क्यों? Because he is a debtor in your books now. The hirer has become debtor in your books now, and higher sales account is credited because sales हुई है आपकी बुक्स में। नॉर्मल जो सेल्स एंट्री होती है बिल्कुल उसी की तरीके से आपने एंट्री करी और टोटल कैश प्राइस से आपने इस ट्रांजैक्शन को ड्यू कर दिया। ठीक, उसके बाद जब आपने डाउन पेमेंट रिसीव किया विच विल बी द फर्स्ट पेमेंट, तो उसमें आप कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हायरर और हायर परचेजर अकाउंट। तो ऑब्वियसली जो डेटर ने आपको कुछ बैलेंस उसमें से कैश प्राइस में से पे कर दिया तो आप उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे और हायरर या हायर परचेजर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। उतना अमाउंट की बैलेंसिंग कम हो जाएगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से। नाउ जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू होता है और इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो आप क्या करेंगे, पहले ही आपने कैश प्राइस से टोटल अमाउंट ड्यू कर दिया है तो आपको इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो इंटरेस्ट आप कैसे ड्यू करेंगे, सबसे पहले हायर परचेजर अकाउंट डेबिट करेंगे, ही विल अगेन बिकम द डेटर इन योर बुक्स एंड यू विल से टू इंटरेस्ट अकाउंट बिकॉज देयर इज एन अनपेड इंटरेस्ट ड्यू फॉर दिस ईयर। ये ड्यू आपने कर दिया, उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव किया 40,000 प्लस सम XYZ अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट भी पे हुआ है। तो जैसे ही आपने अमाउंट रिसीव किया इंस्टॉलमेंट का, आप लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर और हायरर्स अकाउंट, जो भी नाम होगा उसका उस अकाउंट से आप उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसने आपको पेमेंट कर दिया, आपने कैश रिसीव कर लिया। तो ये आपके पास इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव हो गया। अब आप ईयर के एंड में क्लोजिंग की एंट्री करेंगे दो। सबसे पहले जो एंट्री करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर हायर वेंडर और सेलर द इंटरेस्ट इज अ गेन। इंटरेस्ट उसके लिए एक तरीके का गेन है, एक तरीके की इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड में जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप जब एंट्री करेंगे तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड और वो अमाउंट मेंशन करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ये जो है आपने क्लोजिंग कर दी अकाउंट्स की, इंटरेस्ट अकाउंट को आपने ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से आप हर साल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको ड्यू करते जाएंगे और जैसे ही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे उसको आप इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से क्रेडिट करेंगे और साल के एंड में आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। फिफ्थ ईयर के एंड में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के साथ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से हायर परचेजर का अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कैश प्राइस से जितनी इंस्टॉलमेंट्स निकलनी थी वो निकलती चली जा रही हैं और हायर वेंडर अपने आप, हायर परचेजर अपने आप क्रेडिट होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब आप लेजर बनाएंगे फाइनल ईयर में तो उसके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली हायर परचेजर विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ योर बुक्स एज डेटर एंड यू विल हैव कैश और बैंक अकाउंट इन प्लेस इन द फाइनल ईयर which will give you the final installment amount in the cash account और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप जो लेजर्स बनाएंगे उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। द फर्स्ट लेजर अकाउंट दैट यू विल मेक इज हायर परचेजर्स अकाउंट। तो पहला लेजर अकाउंट बनेगा जिसके अंदर एक डेबिट एंट्री होगी और कुछ क्रेडिट एंट्रीज होंगी। द सेकंड वन विल बी इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हर साल आपने चार्ज किया और कितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। द थर्ड अकाउंट विल बी हायर सेल्स अकाउंट। हायर सेल्स अकाउंट बनाएंगे और जब आप साल के एंड में हायर सेल्स अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उसे भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, इट्स एन इनकम, डायरेक्ट इनकम फॉर यू। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, राइट, इन द फाइनल अकाउंट। सो यू विल ट्रांसफर द हायर सेल्स इनटू ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के साथ हायर सेल्स का बैलेंस खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो ये एंट्रीज करने के बाद आप लेजर बनाएंगे। लेजर इज हायर परचेजर्स लेजर, इंटरेस्ट का लेजर, कैश और बैंक। ये तीन लेजर अकाउंट्स आप हायर वेंडर की बुक्स में बनाएंगे और इसको जो है आप करेंगे। हायर वेंडर की बुक्स में इस तरीके की एंट्रीज करेंगे और लेजर्स बनाएंगे, हायर परचेजर की बुक्स में
दूसरे तरीके की एंट्रीज करके उसका लेजर आप बनाएंगे। तो ये दोनों मैंने आपको हायर परचेज सिस्टम के साथ समझा दिए हैं बहुत अच्छे से। अब एक छोटा सा आपको मैं ट्विस्ट और बता देता हूं इसके अंदर कि हायर परचेज और हायर वेंडर की बुक्स में इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पेमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं, बहुत सारे एसेट्स ऐसी खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं हायर परचेज सिस्टम में जिसमें इंश्योरेंस भी होता है। जैसे होम लोन है या लोन का खुद का इंश्योरेंस होता है, या फिर कार लोन है तो कार का इंश्योरेंस होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, वो ये है कि हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस प्रीमियम को अकाउंट करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो हायर परचेजर जो है, जब प्रीमियम ड्यू होता है तो हायर परचेजर एक एंट्री करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि वो उस प्रीमियम को हायर वेंडर को पे करेगा। हायर वेंडर ओनर है उस व्हीकल का, वो पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर इज अ क्रेडिटर इन दिस केस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंडिचर फॉर यू, तो वो डेबिट करेंगे आप। जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देंगे तो आप लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने पेमेंट कर दी। थर्ड एंट्री, एट द एंड ऑफ द ईयर आप इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रीमियम इज अगेन एन एक्सपेंडिचर फॉर यू, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप एंट्री देखेंगे टू प्रीमियम अकाउंट, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट एंड द अमाउंट विल कम। हायर वेंडर के बुक्स में सीधे पहली एंट्री होगी जब वो इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव करेगा, तो वो लिखेगा हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो है एक तरीके से इनकम है, एक तरीके से गेन है, और हायर परचेजर को उसने अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया। और जब वो इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेगा तो बस केवल एक एंट्री करेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो इंश्योरेंस प्रीमियम उसके पास आया और इंश्योरेंस प्रीमियम उसके पास से चला गया, उसके लिए एक्सपेंडिचर बन गया। तो बेसिकली देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और टेक्निकली अगर आप देखें तो उसकी बुक्स में एंट्री ये हुई है कि हायरर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स व्हाट द एंट्री इज। तो मतलब इसको थोड़ा सा आप लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करें। तो ये इंश्योरेंस के केस में एंट्री होती है। तो आप इलिस्ट्रेशन 5 अपनी बुक्स में आप लोग सब अच्छे से कैश प्राइस मेथड से भी प्रैक्टिस करिए, एसेट अक्रूवल मेथड से भी प्रैक्टिस करिए, ऑल्टरनेट मेथड से, और इसको दोनों की बुक्स में एंट्री करके देखिए। 6 इलिस्ट्रेशन 6 भी इसके अंदर है, लेजर्स भी बनवाए हैं, इलिस्ट्रेशन 7 भी है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी ट्विस्ट है, एनालिटिकल टेबल भी पूरी इंटरेस्ट के लिए बनी हुई है, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस एंड वी विल कवर हायर परचेज सिस्टम 2 in the next lecture, next recorded lecture. And if you have any questions, please post it on Google Classroom. Okay, thank you.